Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, respiration in plants and animals. Introduction. All living organisms need energy in order to perform various activities and survive. Do you know how we get this energy to perform different activities? We eat different kinds of food. These foods are digested, absorbed and transported to all parts of our body. The digested food is broken at the cell level, thereby liberating energy. This energy is stored in ATP, adenosine triphosphate molecules in our cells. Our body can use the stored energy whenever it wants to do so. So you can simply say that the process of releasing energy from food is called respiration. Here you will learn how the respiration process happens in animals as well as in plants. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है. ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होता है, देन ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी की हर पार्ट तक. तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है सबसे पहले वो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है सेल लेवल पे और उसके बाद उससे एनर्जी आपकी लिबरेट होती है. तो इस एनर्जी को बोला जाता है एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. हमारी जो बॉडी है फिर स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करती है जब भी उसको ज़रूरत होती है. तो हम सिंपली कह सकते हैं जो प्रोसेस है एनर्जी रिलीज करने का फूड से, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन ब्रेक्स the food molecules glucose present in the cells slowly and liberates energy. It is stored in our cells in the form of ATP. So we can say that respiration is a biochemical process in which simple carbohydrate food is broken by oxygen, thereby releasing energy along with waste products that include water and carbon dioxide. देखिए हम जो एनर्जी हमें ऑब्टेन करनी होती है हमें फूड से मिलती है, राइट? और उसके लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. ये ऑक्सीजन जो है फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं जो आपके सेल्स में आपके प्रेजेंट होते हैं स्लोली एंड देन एनर्जी को लिबरेट करते हैं. फिर ये हमारे सेल्स में एटीपी के फॉर्म में आपकी स्टोर हो जाती है. तो रेस्पिरेशन आपका एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट फूड जो है वो इज ब्रेकन बाय ऑक्सीजन जिससे कि आपकी एनर्जी रिलीज होती है, राइट? और इसके साथ कुछ आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं लाइक आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका वाटर. Respiration is carried out in two steps. The process of breathing in and breathing out of air is called external respiration. When air is passed into lungs, it is transported by blood to all cells of the body, where oxygen is taken in and carbon dioxide is taken out through lungs. This breathing is only exchange ऑफ गैसेस. अब देखिए जो आपका ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं वो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है. जब एयर पास होती है आपके लंग्स में देन ये आपकी ट्रांसपोर्ट होती है बाय ब्लड बॉडी के हर सेल्स तक जहाँ पे ऑक्सीजन को लिया जाता है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकाला जाता है थ्रू लंग्स. Internal respiration or cellular respiration, the process of exchange of gases in the cell where oxygen is consumed and carbon dioxide is released is called internal respiration. अब internal respiration में क्या होता है? ये exchange का process है आपका, राइट? जब आपकी ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है. Types of respiration. In the process of respiration, generally oxygen is used. There are two kinds of respiration, aerobic anaerobic. Aerobic respiration, it takes place in the presence of oxygen. In this process, glucose is completely broken down into carbon dioxide and water. Considerable amount of energy is also produced in aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड आपकी एनर्जी भी इसमें रिलीज होती है. Anaerobic respiration, when respiration takes place without oxygen, it is called anaerobic respiration. In this process, very less energy is produced. It also produces ethyl alcohol and carbon dioxide in plants and lactic acid in animals. इस प्रोसेस में आपकी क्या होता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस होता है, इसमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इसके अलावा इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में एंड लैक्टिक एसिड होता है एनिमल्स में. सो हियर इज अ टेबल गिवन टू यू जिसमें आपको डिफरेंस दिया गया है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का. तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. फूड मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है और उसमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी आपकी रिलीज होती है. Combustion and respiration. Respiration can be compared with burning of fuels such as burning of coal, wood and petroleum. The energy is produced in the form of heat and light as well as carbon dioxide is produced.
but the two processes are different in many ways. The difference between the two processes are given below in the table. अब देखिए रेस्पिरेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं कंबशन के साथ, बट इसके अलावा इनमें डिफरेंसेस हैं. ये दोनों प्रोसेस जो हैं बहुत तरीके से डिफरेंट हैं. तो कैसे देखते हैं इनका डिफरेंस. सबसे पहले रेस्पिरेशन, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स. कंबशन, इट इज़ अ वेरी फास्ट स्टेप प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप. अच्छा, रेस्पिरेशन आपका स्लो प्रोसेस है जिसमें आपके एक सीरीज चलती है केमिकल स्टेप्स की, जबकि कंबशन आपका बहुत ही फास्ट होता है, सिंगल स्टेप में हो जाता है. नेक्स्ट इज इट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर. रेस्पिरेशन आपका रूम टेम्परेचर पे होता है, जबकि कंबशन जो है वो आपका होता है यूजुअली हाई टेम्परेचर पे. नेक्स्ट इज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स. एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो केमिकल मॉलिक्यूल्स के रूप में होगी, जबकि कंबशन में क्या होता है, एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. नेक्स्ट इज carried out by enzymes and carried out by heat. Respiration कैसे होता है, enzymes इसको carry out करते हैं, जबकि combustion के केस में heat. Next, respiration is cellular process whereas combustion is a non-cellular process. Respiration in animals, differences between breathing and cellular respiration. So children, there is a difference between breathing and respiration. ये तो आपको पता चल ही गया होगा, right? In unicellular organisms like amoeba and paramecium, exchange of gases takes place through the cell membrane. In Hydra, exchange of gases happens through moist surface. देखिए अमीबा एंड पैरामीशियम जो है आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर, जो एक सेल से बने हैं. तो इनमें जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. हाइड्रा में जो है वो होता है मॉइस्ट सरफेस के थ्रू. Even leeches and earthworms do not have special organs for breathing. They breathe through moist skin. In insects, there are small holes called spiracles on their sides. Air enters through these holes and reaches all parts of body through a network of thin tube called trachea. अच्छा, आपको पता है earthworms and जो leeches होते हैं इनके भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं ब्रीदिंग के लिए. ये अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं. इंसेक्ट में तो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्पाइरकल्स, उनके साइड्स में होते हैं. एयर जो है इन होल्स के थ्रू एंटर करती है और बॉडी तक पहुंचती है, राइट. और इनका एक नेटवर्क होता है थिन ट्यूब्स का जिसे कहा जाता है ट्रैकिया. Aquatic animals such as fish and tadpoles have gill system. Through these gills, aquatic animals take dissolved oxygen from water. Frogs, when in water, breathe through moist skin. When frogs are on land, they breathe through their lungs. Birds and mammals, including humans, have highly developed lung system where gaseous exchange takes place. Aquatic animals जो हैं इनमें गिल सिस्टम होता है, राइट. ये गिल्स के थ्रू जो डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन वाटर में उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको लेते हैं. फ्रॉग जब पानी में होते हैं तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब वो लैंड पे होते हैं तो लंग्स के थ्रू. आपके बर्ड्स एंड मैमल्स और ह्यूमन बींग्स में तो आपका हाईली डेवलप्ड लंग सिस्टम है जिसके जरिए गैसेस का एक्सचेंज होता है. सो हियर इज अ टेबल गिवन टू यू. आपके पास डिफरेंस है ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन की. तो चलिए देखते हैं इसे. ब्रीदिंग, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. Cellular respiration, it is biochemical process in which food molecules are oxidized to carbon dioxide and water. ब्रीदिंग देखिए आपका फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ प्रोसेस इसमें आपका गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन लेना एंड देन एक्सेल करना CO2. जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. ब्रीदिंग, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल्स. सेलुलर रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स. Okay, in breathing, enzymes are not involved, and in cellular respiration, enzymes are needed to break the food substances. Breathing, energy is not released, and in cellular respiration, energy is released. Activity 6.1. To show that carbon dioxide is given out during breathing, take 100 ml of lime water in a beaker, breathe out into the beaker for a few minutes. You will find that lime water will turn milky. आपको 100 ml जो है water लाइम वाटर लेना है एक बीकर में, फिर आप ब्रीद आउट करेंगे बीकर में फ्यू मिनट्स के लिए. उसके बाद आप देखेंगे जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया है. तो मिल्की टर्न हो रहा है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. Respiration system in human beings. The respiration system of human beings consists of the following body parts: nasal cavity, larynx, trachea, bronchi and lungs. Nasal cavity. We generally breathe through our nostrils and sometimes through our mouth. The nasal cavity traps germs and particles present in the air. Nostrils are the two twin narrow passages in our nose which are connected to trachea or vent pipe at the inner end. देखिए हम जनरली अपने नोज से ब्रीथ करते हैं और कई बार
माउथ से भी कर लेते हैं। तो आपकी जो नेजल कैविटी होती है वो क्या करते हैं, जर्म्स को ट्रैप कर लेते हैं, या आपके जो एयर में पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे उनको आपका क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो जो एयर है वो आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू जाती है, जो आपके ट्रैकिया और विंड पाइप तक कनेक्टेड होते हैं इनर एंड पे। लारिंग्स, ear which passes through nasal cavity comes into the rectangular chamber called larynx or voice box which is responsible for speech। अब एयर जो है आपकी नेजल कैविटी से होते हुए एक रेक्टेंगुलर चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं लारिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स, ये आपकी स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज a trachea windpipe। The trachea windpipe is a tender muscular tube supported by cartilaginous rings। It is divided into two bronchi। अब आपका जो ट्रैक है जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है, ये आपका काफ़ी टेंडर मस्कुलर ट्यूब होता है जिसको कार्टिलेजिनियस रिंग्स सपोर्ट करते हैं, और ये डिवाइड हो जाता है आपके 2 ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स एंड फाइनली एंटर्स टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली। अब आपकी 2 ब्रोंकाई है, हर ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हो जाती है स्मॉलर ट्यूब में जिसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स, एंड देन फाइनली एंटर करते हैं एक छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहते हैं एल्वियोली। Lungs. There is one pair of lungs. Each lung has millions of alveoli which get filled with air when we inhale। अब एक पेयर ऑफ लंग्स है हमारे पास, हर लंग में आपके मिलियंस ऑफ एल्वियोली है जो कि एयर से फिल हो जाते हैं जब हम इनहेल करते हैं। Mechanism of respiration. The process of respiration is completed in 2 stages: external respiration or breathing and internal respiration or cellular respiration। अब जो respiration का process है वो 2 stages में होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे ब्रीदिंग कहते हैं एंड इंटरनल रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कंप्लीटेड बाय लंग्स। लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स आपके कहाँ पे होते हैं, चेस्ट कैविटी में होते हैं। अ लार्ज फ्लैट मसल कॉल्ड डायफ्राम इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। अब जो डायफ्राम है ना आपका, वो अटैच होता है चेस्ट कैविटी के फ्लोर तक। With the help of diaphragm, air reaches and comes out from lungs. The movement of air from atmosphere to lung is called inhalation and exhalation। अब diaphragm की हेल्प से क्या होता है कि जो एयर है वो पहुंचते हैं लंग्स तक और लंग से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो जो एयर आप एटमॉस्फेयर से लेते हैं दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन, और जो आप बाहर निकालते हैं दैट इज exhalation। When air comes out from lungs to atmosphere, it is called exhalation। Hence, the process of breathing is completed by the 2 stages: इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। ब्रीदिंग आपकी तभी कंप्लीट होती है जब आपके 2 स्टेजेस होते हैं, यानी इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। सेल्युलर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस: ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ओके, अब आपको देखिए दिया गया है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, देन ग्लाइकोलिसिस, एंड देन आपके होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो सेल्युलर रेस्पिरेशन में आपके 2 स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं। दीज आर द 2 स्टेजेस। When sugar or glucose breaks down into pyruvic acid, it is called glycolysis। जब ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, पायरुविक एसिड में, that is called glycolysis। If oxygen is present, then pyruvic acid is broken down into carbon dioxide and water along with large quantity of energy। This process is called Krebs cycle। If oxygen is absent, then the pyruvic acid is broken down into carbon dioxide and lactic acid along with less quantity of energy। अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुविक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में along with लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। तो ये प्रोसेस होता है आपका क्रेब्स साइकिल। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा, पायरुविक जो एसिड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड में, एंड उसमें आपका जो एनर्जी तो रिलीज होगी बट बहुत थोड़ी सी। एक्टिविटी 6.2 to demonstrate the breathing process in humans. Take 2 glass bell jars, fix Y glass tube with balloon in the jar as shown in the figure। देखिए आपको 2 बेल जार्स लेनी है और इस तरह का आपका एक Y शेप का जो है आपको मिलेगा ट्यूब, राइट। ये देखिए इसको फिक्स करना है जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया फिगर में। Tie a thin rubber shut tightly around the open rim of the bell jar। This system is comparable to the lung system of human being। The bell jar is like diaphragm and balloon is like lungs। अब देखिए आपके क्या है, आपका जो बेल जार है वो आपका एक डायफ्राम की तरह है, जो बलून आपने इसमें लगाए हैं वो आपके क्या है, लंग्स की तरह काम करेंगे। Now pull the rubber sheet down। When pace of jar increases, the balloon gets inflated as shown in the figure। When rubber sheet is released, the balloons collapse। In a lungs, inhalation exhalation of air happens like this। तो अब क्या करेंगे, जो रबर शीट आपने लगाई है बेल जार पे, जब आप उसे क्या करेंगे, पुल करेंगे
तो क्या होगा कि जो स्पेस है जार का इंक्रीज हो जाएगा, बलून्स आपके फ्लैटन हो जाएंगे जैसे कि इसमें दिखाया गया, और जैसे ही आप उसे रिलीज करेंगे अगेन वो क्या हो जाएंगे, आपके कोलैप्स हो जाएंगे, राइट। तो इसी तरह से जो हमारे लंग्स हैं वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं। रोल ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेशन। ब्लड कंटेन्स 3 different type of cells. Red blood cells is one of them. Our blood is red because it contains a pigment called hemoglobin. This hemoglobin carries oxygen from lungs to all parts of our body, which helps to break food particles, glucose. अब ब्लड में ना आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक तो इसमें से है रेड ब्लड सेल, आरबीसी जिसे हम कहते हैं। हमारे ब्लड का कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है ये फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, एंड देन ये हेल्प करता है टू ब्रेक फूड पार्टिकल्स। Respiration in plants. Plants are living organisms, so like animals, they too need energy. They obtain energy by the process of respiration. Plants use oxygen for respiration and release carbon dioxide. But plants do not have any specific organs like animals. The exchange of gases takes place by the process of diffusion. Diffusion of gases occurs through all parts of plant independently like stem, root and leaf. The small tiny opening called stomata on the surface of leaves helps in exchange of gases. The lenticles, openings in stem helps in exchange of gases. The root hairs, apical part of roots helps in exchange of gases. देखिए प्लांट्स आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि एनिमल्स हैं, तो उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनको एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स भी आपको पता है रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन एंड रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बट प्लांट्स के कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं जैसे कि एनिमल्स के होते हैं। तो जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। अब जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो प्लांट्स के ऑल पार्ट से होता है, वो जैसे कि आपका स्टेम, रूट एंड लीफ है। आपके स्टोमेट आपको पता है कि जो लीफ के सरफेस पे होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। आपके जो लेंटिकल्स या ओपनिंग्स होती है स्टेम में वो गैसेस के आपके एक्सचेंज में हेल्प करती है। रूट हेयर्स या एपिकल पार्ट है रूट्स के, ये भी गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। एक्टिविटी 6.3 टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। Keep some germinating seed in a flat bottom flask. Cover its mouth with a rubber cork having 2 holes. Insert a thistle funnel in one hole and in another hole insert a bent glass tube as shown in figure. देखिए आपको क्या करना है, आपको कुछ जर्मिनेटिंग सीड लेने एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क में जैसे कि आपको दिखाया गया, राइट। इस पे माउथ पे आपने एक रबर कॉक लगानी है जिसमें आपके 2 होल्स होंगे। अब आपको एक थिसल फनल जो है वो इंसर्ट करनी इन वन होल एंड अनदर होल में आपको एक बेंड करना है ग्लास ट्यूब जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया। प्लेस अनदर एंड ऑफ बेंड ट्यूब इनसाइड द ग्लास। अब आपको जो दूसरा एंड है बेंड ट्यूब का वो कहाँ रखना है आपको, वो आपको रखना है ग्लास के अंदर, राइट। Test tube containing water. Leave the setup for few hours. Now note down your observation. Now replace the test tube containing water with another test tube containing lime water. अब आपको क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए आप उसे छोड़ देंगे, आपको ऑब्जर्वेशन अपनी नोट डाउन करनी है। अब रिप्लेस करना है आपको टेस्ट ट्यूब को कंटेनिंग वाटर। अब आपको दूसरे टेस्ट ट्यूब से करना है जिसमें आपका लाइम वाटर होगा। अगेन लीव दिस सेट अप फॉर फ्यू आवर्स. Note down your observation. You will find that lime water has turned milky. It proves that during the germination of seeds, respiration process releases carbon dioxide. तो जब आप थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे जो लाइम वाटर आपको मिल्की हो जाएगा, तो यहाँ से क्या प्रूफ होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, यानी कि जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, और जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑफकोर्स आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। Mechanism of respiration in plants. Like animals and plants too, respiration is completed in 2 phases. Exchange of gases through the individual part of plants, and second is cellular respiration. It is also like animals by 2 sub-stages, glycolysis and aerobic or anaerobic respiration. In anaerobic respiration, carbon dioxide and ethanol are produced along with small quantity of energy. तो देखिए जैसे एनिमल्स में होता है 2 स्टेप्स में होता है, आपके 2 फेजेस में रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, एनिमल्स में भी ऐसे होता है। सबसे पहले तो एक्सचेंज होता है गैसेस का थ्रू इंडिविजुअल पार्ट। नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें आपके क्या होता है कि 2 सब स्टेजेस होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड एरोबिक या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल आपके प्रोड्यूस होते हैं विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। इन रेस्पिरेशन प्लांट्स कन्वर्ट द शुगर बैक इनटू एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड लाइफ प्रोसेसेस। द केमिकल इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन शोज दैट द शुगर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन। जब रेस्पिरेशन होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं कि शुगर को वापस कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में फॉर ग्रोथ एंड लाइफ प्रोसेसेस के साथ। तो जो केमिकल इक्वेशन है आपके पास
ये क्या रेस्पिरेशन की क्या शो करती है कि जो शुगर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस अब ये कंबाइन होगी ऑक्सीजन के साथ। नोट दैट द इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन इज द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आप ये देखिए जो इक्वेशन है ना, ये फोटोसिंथेसिस के क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। The process of respiration is similar to oxidation, just like in the case of wood burning to produce heat. Respiration is the burning of sugars for energy to grow and do internal work of living. और जो respiration का process है ये आपका similar है oxidation के प्रोसेस के थ्रू। जैसे कि आपका वुड बर्न होता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपके जो रेस्पिरेशन में भी शुगर की बर्निंग हो रही है फॉर एनर्जी टू ग्रो और कुछ इंटरनल वर्क ऑफ लिविंग। Stomata. Major quantity of gaseous exchanges takes place through stomata. It is a space between two kidney-shaped guard cells. It controls the opening and closing of stomata. गैसियस एक्सचेंज जो है ज़्यादातर आपकी स्टोमेटा के थ्रू होती हैं और ये स्पेस होता है आपके दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स के बीच में। ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की। सो हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा गिवन टू यू। दिस इज द क्लोज स्टोमेटा, ये आपका स्टोमेटा ओपन हो चुका है। Activity 7.4 to show that heat is released during respiration. Take some bean seeds and soak them in water overnight and keep them moist till they start germinating. Take some of these germinated seeds and boil them. Keep the germinating seed in one thermos flask A and boiled seed in another flask B. आपको bean seeds लेने हैं, पानी में भिगोने हैं overnight and मॉइस्ट रखना उनको जब तक कि वो जर्मिनेट होना स्टार्ट ना करें। अब आपने क्या करना है, कुछ जर्मिनेटेड सीड्स को बॉईल करना है। जर्मिनेटिंग सीड्स को आपने दो फ्लास्क में रखना है, ए और बी में आपने क्या रखना है, आपके जो बॉइल्ड सीड्स से। इंसर्ट अ थर्मोमीटर इन ईच ऑफ फ्लास्क एंड क्लोज द माउथ विद कॉटन। अब आपने क्या करना है कि दोनों में ही देखिए थर्मोमीटर को इंसर्ट किया गया है एंड इनके जो माउथ है वो कॉटन से क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। नोट डाउन the temperature of both thermometers. Leave both the flask for 2 to 3 hours. अब आपने क्या करना है, दोनों ही जो आपने टेम्परेचर दोनों के नोट डाउन करने हैं एंड दोनों ही फ्लास्क को 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। You will find that the thermometer reading is higher in flask A than the thermometer in flask B. It is because in flask A respiration process produces heat, whereas in flask B respiration process does not take place. आप देखेंगे कि जो आपका थर्मस फ्लास्क ए है ना, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, वो रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है। जबकि फ्लास्क बी में क्या है, आपके बॉइल्ड सीड्स हैं, वहाँ पे आपके रेस्पिरेशन नहीं चल रहा है। डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब आपको देखिए क्या दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के बीच। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस शुगर्स फ्रॉम एनर्जी एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है, बर्न्स शुगर्स फॉर एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ओके, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन सेल्स हैविंग क्लोरोफिल, whereas respiration occurs in most cells. Oxygen is produced in photosynthesis and respiration में क्या होता है कि ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। ओके, फोटोसिंथेसिस में water is used, whereas in respiration water is produced. In photosynthesis, carbon dioxide is used, whereas in respiration, carbon dioxide is produced. And photosynthesis requires light, whereas respiration occurs in dark light. Respiration का sunlight से कोई connection नहीं है, वो तो dark light में भी हो जाता है, right? Points to remember. All living organisms require energy for their physical and biological activities. The process of releasing energy from food is called respiration. The respiration process that takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration, and the respiration process that takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. आपकी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगी एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन. Breathing is a physical process in which exchange of gases takes place by respiratory system. Cellular respiration is the process which takes place by breaking of glucose and liberating energy and carbon dioxide. Combustion is burning of substance at its ignition temperature. Breaking of glucose into pyruvic acid is called glycolysis. The liberation of energy and carbon dioxide from pyruvic acid is called Krebs cycle. In humans, respiration takes place in two stages, breathing and cellular respiration.
Nasal cavity, larynx, trachea, bronchi, and lungs are the major parts of respiratory system. The process of taking air into the lungs is called inhalation, and the process of removing air from lungs is called exhalation. Blood carries the oxygen from lungs to each part of the body, and plants exchange of gases takes place through stomata. Opening and closing of stomata is controlled by guard cells. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.